আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 2টা দিন বাকী। নৱগঠিত চমৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰৈমাৰীত আজি গৰৈমাৰী ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত গৰৈমাৰী ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশাল কংগ্ৰেছৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনী সভা। সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ AICCৰ সম্পাদক মনোজ চৌহানে। পূব চমৰীয়া আৰু গৰৈমাৰী জিলা পৰিষদৰ কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পত্নীয়ে মিলি ৰাজ্যত চুপাৰী কয়লা বালি মাটিৰ চিণ্ডিকেট চলাই থকা বুলি মনোজ চৌহানে মন্তব্য কৰে। 7 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বেলট কাগজত কংগ্ৰেছক ভোট দি বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব বুলি ৰাইজক আহ্বান জনায়। এই সভাত সহস্ৰাধিক সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক DN24 নিউজ। पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट मांगने आया। मैं थोड़ा इसके इतिहास में जाना चाहूंगा रजपुत्री जी। क्यों? क्योंकि सवाल इसका नहीं है। पंचायत के चुनाव में तमाम पार्टियां आ रही है, AGP आ रही है, BJP आ रही है, सब वोट मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का हक और कांग्रेस का अधिकार पंचायत के चुनाव में वोट मांगने का सबसे ज्यादा है। और वो क्यों है, उस इतिहास को मैं जानना चाहूंगा। पहला, महात्मा गांधी जी ने कहा था ये देश गांवों में बसता है। मैं गांव में ही आया हूं और जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे ये देश मजबूत नहीं होगा। यहां से पंचायतों को मजबूत करने का काम शुरू हुआ। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था पर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा काम किया है, उसका नाम है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री। आप सब लोग हमारे इन साथियों को, हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइएगा। ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय असम। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য শেষ হ'ব। 7 তাৰিখে আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আমাৰ নিৰ্বাচন 2 তাৰিখে হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 7 তাৰিখে হ'ব। এই 2টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সমগ্ৰ অসমত আমি আশা কৰোঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পতাকাৰ তলত আমি প্ৰায় 1/3 জিলা পৰিষদ আৰু 70% আমি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত, কেমেৰাৰ সন্মুখত আপোনালোকে চাওক, এইফালৰ পৰা এইফাললৈকে। আৰু ইয়াতে আমাৰ 11জন কাউন্সিলৰ কেণ্ডিডেট আৰু এটা আনকনটেষ্ট আমাৰ হাতীপাৰা। আমাৰ 2টা জিলা পৰিষদ আপোনালোকৰ সন্মুখত, কেমেৰাৰ সন্মুখত আছে। আমি আপোনাৰ খবৰ পৰা এওঁলোকৰ কাৰণে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ছয়গাঁও আৰু বনগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে এই 11টা কাউন্সিলৰ এটাটো আনকনটেষ্ট হৈছে আৰু 10টাই আমি জয়লাভ কৰিম। 2টা জিলা পৰিষদ 90 পৰা 95% ভোটত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ৰাইজৰ মৰম আমাৰ লগত আছে। ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ, আমাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি সকলোৰে কাৰণে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ৰাইজৰ দহৰ উন্নয়নৰ হকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ৰাইজক আৰু দহৰ দুখৰ সময়ত আমি যাতে সকলোৱে থিয় হ'ব পাৰোঁ। আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থীসকলক যাতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে। তাৰ লগতে আপোনালোকে গম পায় আমাৰ ৱাৰ্ড ভিত্তিত যিটো নিৰ্বাচন চলি আছে, তাত আমাৰে দলৰ 4জন 5জনকৈ প্ৰায় কেণ্ডিডেট প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডত আছে। সেইকাৰণে নিৰপেক্ষভাৱে ৰাইজে আৰু দহে
মৰমেৰে যিসকলক নিৰ্বাচিত কৰিব আমি আমাৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ তাতে নাই কৰা আমি কোনো ধৰণে আমি ৰাইজে তেওঁলোকক মৰম কৰি যাক জিকাই দিব আমি তেওঁলোকৰ হাতেৰে কাম কাজ আগবঢ়াম সকলোৰে কাৰণে আমি আৰু লগতে বকো প্ৰেছ ক্লাব গৰৈমাৰী প্ৰেছ ক্লাব দক্ষিণ কামৰূপ প্ৰেছ ক্লাব প্ৰত্যেকজনক আমাৰ একেটা দিন ৰাজনৈতিক সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকে ভাগ্যধাৰী হোৱাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত আমি আপোনালোকৰ ওচৰত ঋণী আপোনালোকে ইমান সময় দি আমাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ময়ো আপোনালোকক লৈ বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আমাৰ প্ৰেছৰ সদস্যসকলক যোৱা 20 বছৰ মই দেখি আছো দুখৰ সময়ত সকলোৰে ওচৰত থিয় হয় বানপানীৰ সময়ত সকলোৰে ওচৰত থিয় হয় অন্যাৰ সময়ত আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত থিয় হয় এইটো এটা সুস্থ পৰম্পৰা এইটো পৰম্পৰা আমি যাতে সকলোৱে বজাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে আশা কৰিছো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক যোৱা সময়ত কেইটামান দিনত আমাৰ সাংসদৰ গাড়ী ভাঙচুৰ হৈছে বহুত ঠাইত গুণ্ডামি কৰিছে গাড়ীবিলাক ভাঙিছে আমাৰ বিধায়িকাক অত্যাচাৰ কৰিছে ইয়াৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছো প্ৰতিবাদ কৰিছো অসমৰ জনসাধাৰণে উপযুক্ত সময়ত ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব সকলোৰে ওচৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্ব আৰু শক্তিশালী হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত অনাগত ভৱিষ্যতত ভাৰতবৰ্ষত ৰাহুল গান্ধী অনতি পলমে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিব ধন্যবাদ 8 दिन से पंचायत के चुनाव प्रचार में हूँ 26 तारीख से मैं नॉर्थ बैंक शाम करके आया फिर मिला शाम नौगांव वगैरह भी करके आया फिर देवरिया से आ रहा हूँ पंचायत में कांग्रेस पार्टी का अच्छा रिजल्ट रहेगा जो लोगों में उत्साह है कांग्रेस के लिए और जो हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की लोगों में नाराजगी है आक्रोश है लेकिन मैं दो बात बड़ी महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ पहली बात ये है कि अभी हाल ही में 3 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के राज में जो महिलाओं को नौकरियां मिली हैं तो नौकरी देने से पहले महिलाओं के साथ दुराचार होता था फिर नौकरी मिली ये इस बयान की चीफ मिनिस्टर के इस बयान की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ कड़ी निंदा करता हूँ और आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि सार्वजनिक तौर पे महिलाओं से झुक के जो पाप किया उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना करें एक और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि अभी हाल ही में 3 दिन पहले मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है और जाति जनगणना का उनका फैसला उनका खुद का नहीं ये तो पहले जाति जनगणना के खिलाफ थे और इनके तमाम मंत्री और मोदी जी स्वयं इसके पक्ष में नहीं थे लेकिन 2 साल से राहुल गांधी जी ने जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाति जनगणना के लिए कि मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े और मजबूर होकर मोदी सरकार राहुल गांधी जी का जो विजन है उनका जो नैरेटिव है उनका जो विमर्श है उस पर मजबूर होना पड़ा मोदी सरकार को और जाति जनगणना करानी पड़ी और ये जाति जनगणना कोई सामान्य चीज़ नहीं है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है आपको आने वाले टाइम में दिखेगा सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई है जो राहुल गांधी जी ने खुद जीती है खुद इसके लिए अपना उनका खुद का विजन था और 2 साल के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि आप लोग चाहे जो कर डालो मैं ये करा के मानूंगा और मजबूरन मोदी सरकार को करना पड़ा तो मैं इस आपके माध्यम से आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इस देश के दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों तमाम शोषित वंचित और पीड़ित समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो अवसर में उनको बहुत बड़ा एक तरह से बदलाव दिखेगा और एक जो बात है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तो अवसरों में दिखेगा और आने वाले टाइम में दलित पिछड़ा गरीब वंचित शोषित पीड़ित इन सबको देश की मुख्य धारा में लाने के काम राहुल गांधी जी ने किया सिंडिकेट राज यस सिंडिकेट राज कोई आप नहीं जानते क्या मैं क्या बताऊं मैं मध्य प्रदेश से हूँ आप तो यहाँ के हो आप तो सिंडिकेट राज की तहत को जानते हो माइक्रो लेवल का सिंडिकेट राज जानते हो आपको तो मुझे बताना चाहिए और हाँ पूछो मैं बता रहा हूँ सिंडिकेट जो चल रहा है ये जग जाहिर है कोई यहाँ नहीं इस देश में भी नहीं
दुनिया जानती है। मतलब एलन मस्क जो ट्विटर का मालिक है ना, उस ट्विटर पे एक ऐप है ग्रॉक में क्वेश्चन करोगे, ग्रॉक में ट्विटर पे ऐप में ग्रॉक में दबाओगे और एनीथिंग आस्किंग का ऑप्शन आता है, आप पूछोगे उससे कि हु इज द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आंसर आता है हेमंत बिस्वा शर्मा। और बिकॉज ऑफ सिंडिकेट राज, चाहे कोयला हो, चाहे सुपारी हो, चाहे सैंड्स हो, चाहे लैंड्स हो, सब में 40% का कट। तो बिना 30-40% दिए कुछ हो नहीं रहा है। न प्रदेश की महिलाएं, न प्रदेश का युवा, न प्रदेश का किसान, न प्रदेश का व्यापारी, न प्रदेश के ठेकेदार। 30,000 करोड़ का 30,000 करोड़ का अभी देनदारी बाकी है। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, 30,000 करोड़ रुपया उनको नहीं दिया गया है, काम बंद है, तो यहाँ काम नहीं करना चाहता क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा। तो सारा पैसा मतलब पूरे प्रदेश को पूरे से लूटा जा रहा है। तो अरे भाई टाइम में जनता जवाब देगी, जनता मालिक है। और दूसरा जवाब इसी भर का नहीं है, सिर्फ सिंडिकेट राज और इनके करप्शन की बात नहीं, एक और बात है अहंकार। इतना अहंकारी यहाँ के मुख्यमंत्री कि मैं नहीं समझता, मेरा लगभग 23-24 साल का राजनीतिक जीवन हुआ, तमाम विपक्षी पार्टियों में राज किया, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्टेटों में, देश में किया, लेकिन इतना अहंकारी प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, जिसको इतना अहंकार है, कुछ भी बोलता है। महिलाओं के बारे में जो डेरिवेटिव कमेंट है, ये क्या है? जब इस तरह का अहंकार तो रावण और दुर्योधन में भी नहीं था। तो जब उनका अहंकार चूर चूर हो गया, तो उनका चूर होने में जनता मालिक है। जनता जब वोट देती है ना, वोट ओट में देती है, वो धीरे से दबा देगी, बताएगी, सारा घमंड उनका चूर चूर होगा। थैंक यू।